Good morning, everybody, and welcome to the 16th online workshop by Bookshare. Today, we are going to speak to two distinguished guests in this new series that we are running called Living with Dignity. And I'm going to introduce these two guests shortly. Just a little housekeeping for our guests and for all participants. As usual, we have some international participants who have joined us. So we'll be alternating between Hindi and English. So requesting both our panelists to speak in both English and Hindi for the benefit of all our listeners. So continuing with our thought process of living with dignity. Today we have two leading personalities, but very distinct personalities in their own right. And they are going to talk about two very different things. We have Rajesh Mehta, a visually impaired person, having successfully risen to great levels in the corporate world and has become a trainer. And we're going to hear his journey, how he managed to reach where he is today and what are the challenges that he faced and how he took care of those challenges and how he overcame them. Following Rajesh, we're going to talk to Sarita. Sarita heads the Indic AI Foundation. And this foundation is basically set up to help persons with blindness excel in professional courses. So they conduct support mechanisms. They have a lot of materials in accessible formats on their websites. And Sarita is going to talk more about how they plan to support people with blindness and low vision to achieve heights in the professional sector. So सभी का स्वागत है आज के ये 16वीं कड़ी में हमारी जो बुकशेयर की ऑनलाइन सीरीज हो रही है और ये जो करंट हमारी सीरीज चल रही है लिविंग विद डिग्निटी उसके तहत हम आज दो बड़े इंटरेस्टिंग लोगों से बात करने वाले हैं। राजेश मेहता जो है जो एक विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है पर इंपेयरमेंट के बावजूद भी उन्होंने कॉर्पोरेट जगत में बहुत बड़ा नाम कमाया है प्राइवेट सेक्टर में। तो हम उनसे ही उनके शब्द में ही उनकी पूरी जो जर्नी है जिंदगी का जो सफर रहा है उनका उसके बारे में जानेंगे और उनसे ही जानेंगे कि वो किस तरह से आज जो मुकाम पे पहुंचे हैं वो कैसे पहुंचे, कौन सी बाधाओं इनके रास्ते में आई और उस बाधाओं को उन्होंने कैसे। राजेश के बाद हम सरिता जी से बात करने वाले हैं। सरिता जो है वो इंडिक एआई फाउंडेशन को लीड करती है और ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो ब्लाइंड के लिए ही बनाया गया है खास तौर से, जहां वो चाहते हैं कि ब्लाइंड नए प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ अपना रुख बदले, नए प्रोफेशनल कोर्सेज में वो आगे बढ़े और उनको आगे बढ़ने के लिए वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, वो हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं और वो कैसे करते हैं वो हम सरिता जी से आगे सुनेंगे। तो स्वागत है इन दोनों महानुभावों का और सबसे पहले हम राजेश को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने जिंदगी के सफर के बारे में हमें बताएं। वेलकम राजेश, ओवर टू यू। Thank you Homer, thank you so very much. Just a little confirmation, are you all able to hear me clearly there? Yes, you're absolutely clear. All right, thank you so very much. Okay, I have also switched on my camera. Just if someone could confirm if you are able to see me, those whom probably may like to see me in person. So can someone confirm? Sarita, are you able to see me there? Yes, we can see you, Rajesh ji. All right, Sushant, thank you. Thank you so very much. Right, so warm welcome and warm morning to each one of you. Thank you so very much, Homer and entire Bookshare team to have me there. It is my, I won't call it a
it is my honor, to be here. Considering, that we are all belongs to the same community, I would love if we can keep this conversation at a very, very informal level, and probably end of this hour or 2 hours that we are going to spend together, if we probably could learn a couple of things from each other. Because let me tell you, I'm not yet, become a senior citizen, right? I'm not yet a senior citizen, and those Homiar has, told me to share my experience, etc., etc., with all of you. But it is just a 20 years journey, 15 years to be very precise, right? And of course, prior to my professional career, I have some exposure to the corporate world during I was studying, etc., etc., on a side by side. बट ये 20 सालों का जो अनुभव या 15 सालों का जो अनुभव मैं आपके साथ जो शेयर करने जाने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट इट इज यूनिक, बट somewhere I think if few of those can be helpful to any one of you, would be my privilege. So that's what I want to do. Now let me quickly tell you a bit about myself, what I do, where am I from, what do I do in my day-to-day work, etc., so that all of you do understand. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब इंट्रोडक्शन में हमें कोई कह देता है कि आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ टीचर, आई एम अ म्यूजिशियन, बट उसके अंदर तक जाकर पता करना कि बेसिकली what are we, or what am I doing, what kind of a teacher am I, what kind of a musician am I, or what kind of a mathematician am I, right? Because these are all very macro level concept. So thank you, Homiar, for introducing me like that. But basically I'm a behavioral analyst. अब ये क्या है? Behavioral analyst is one of the very few company offers this particular role, right now worldwide. And IBM, I work with IBM, in case if you wish to know about which company am I associated with. I work with a company named IBM, which stands for International Business Machines. Those probably who may not associate this name, probably we are the companies who actually discovered the first laptop through which we are able to kind of connect through various apps like Zoom, or whichever the apps that we want. So yes, I'm proud about that. This is the company who also discovered the first traffic signal ever in the world. So that's the company which I work with. Now, having said this, the behavioral analyst role that I play, ये क्या है? What is it? So basically, we try to observe people's behavior. We try to analyze people's swabhav, and we'll see for it that where are the gaps? What kind of improvisations, that this particular person's personality can bring in. So basically our team and my team, I have almost 700 plus people working with me across almost 7 countries that I lead, across India, across Asia Pacific, so which includes Singapore, Malaysia, Thailand, a few parts of China. In fact, that's what the announcement has come last week my way, so which I will be leading. And having said this, basically we keep working towards potential of the performer, right? So आपने काम तो जरूर किया है, but आपकी क्षमता क्या है? And that's what my team tries to measure and analyze it. All right. अब ये सारा, this particular role, I've been working with IBM for last 15 years. In fact, 2 weeks back, I celebrated my 15th anniversary at IBM. Now, having said this, ये सारी चीजें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, which I'm trying to, kind of put forward, ये कैसे हुआ, right?
what is my background, what I have done. So, I'm not a born blind, by the way. I, lost my sights probably when I was 8 because of the retina detachment. And then, of course, I joined blind school. I'm from Happy Home School for the Blind, which is located or situated at Mumbai. And I'm personally also born and brought up from Mumbai. Now, Happy Home से मैंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की, and then I wanted to do something different, right? Wanted to do something different. I do not wanted to, just, and in those days, the two roles or two jobs which were very, very common for any visually impaired or per se for blind were music teacher or, becoming a telephone operator, EPBX. Those were actually, quite a lot there. In fact, in all the offices, I'm sure Homiar may, kind of echo this particular thought, saying that anyone and everyone wanted to become the EPBX operator, right? In fact, we were being told in our school saying that, okay, आप ये सारा छोड़ दीजिए, college का वगैरह खत्म कीजिए, you don't need to, get into it. And rather you just go through the telephone operator course, which is for 2 to 3 months, and then maybe start applying for a government jobs, where you have a security, where you have a quota, where you have a reservation, etc. But somehow I had that instinct, and I'm sure all of us, we have this. I don't want to call it an instinct, but I would say itching कि मुझे कुछ तो अलग करना था. And I am sure कि all of you also may have a similar kind of inspiration, right? कि we want to do something different, right? And I understand in those particular age, even I wasn't clear कि मुझे क्या करना है. That particular specification was missing even, for me. But this particular spark saying that I want to do something different took me my first step. And what was my first step? तो मैंने सारे जो मेरे दोस्त लोग थे, नेत्रहीन दोस्त लोग थे, classmates थे, who also passed out along with me from 10th standard, I did not join along with them the same college. Purposefully, I went to the different college where probably very few or rather none blind student ever had admitted. In fact, I still remember when I went for a admission process, I was being told that, I need to meet up with the principal because, they had never ever attended any blind student prior. Now, I went and I spoke to him. I still remember that conversation. He said, Rajesh, you definitely want to do it. We would like to have you, but let me tell you, we have few of these subjects and which I don't know how would you able to cope up. And those were logic, those were economics, and those were the part of the compulsory subjects. Now today, I know that the technology enhancement has made us, to achieve the heights which otherwise was not possible in those days. Economics is many of the blind people are doing, but in those days it was very difficult. I said, "ठीक है, if we will try." I never said no because it was my thought process. I wanted to be the part of that system. I had chosen that college, so I have to become the part of them. So they said, all right, they gave me the admission. I'm telling you, when I went for my important point, Rajesh, sorry to interrupt you. Can we have a little bit more in Hindi? क्योंकि ये जो हमारे दोस्त थे, काफी सारे जो जुड़े हैं, और आप एक बहुत महत्वपूर्ण point अभी बता रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको अनुवाद कर ले. Sure, no problem. Thank you, Homiar. Please, keep coming in and kind of pausing us in case if we just get floated. So मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि सबसे पहले मेरी इच्छा ये थी कि मुझे कुछ तो अलग करना था. अब मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं, राइट?
और मेरे समझ के बाहर था वो, बट मुझे कुछ तो अलग करना था, दुनिया में अलग कुछ तो करना था। तो मैंने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि वेर मेरे सारे नेत्रहीन दृष्टिबाधित दोस्त ने जहां पर कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने वहां पर नहीं लिया, और मैंने ऐसे कॉलेज में लिया कि जहां पर पहले या तो कोई ब्लाइंड गया ना हो, और गया हो तो किसी को मालूम भी ना हो। तो एवरीथिंग बिकम्स न्यू फॉर मी। ऐसी जगह पर मैं गया। अब जब मैंने व्हेन आई टुक एन एडमिशन देयर, ऑफ कोर्स उनके खुद के कुछ नियम थे कि आपको लॉजिक सब्जेक्ट लेना होगा, आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेना होगा ना। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Yeah, sorry guys, I'm back. So can you all hear me? सुन पा रहे हो आप लोग? Yes, we can. Go ahead. Okay. तो सबसे पहले जब हमको वो कहा गया कि आपको लॉजिक और इकोनॉमिक्स लेना होगा, तो बिकॉज मैंने, ये मेरा निर्णय था कि मुझे उस कॉलेज का हिस्सा बनना है, आई एक्सेप्टेड, आई नेवर सेड नो। बट मैंने साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर आपका मुझे साथ होगा, अगर मुझे आप सिखा पाओगे, तो वी शुड ट्राई। अब ये जब दौर चालू हुआ तो वहां के प्रोफेसर के लिए मैं नया था, मेरे लिए वो वातावरण, क्योंकि मैं तो ब्लाइंड स्कूल में पला बड़ा था ना, तो मेरे लिए भी ये नॉर्मल कॉलेज में जाना, साइटेड के साथ बैठना, सीखना काफी नई चीजें थी। बट मैंने वो एक्सेप्ट किया, आई एक्सेप्टेड द चैलेंज, आई नेवर गिव अप। मैंने कभी उस पर नकारात्मक भूमिका नहीं दी। ओके, अब मैं जब वहां पर गया तो आई स्टिल रिमेम्बर जो मेरे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर का जो एटीट्यूड जो था, इट वाज लाइक, व्हाई शुड आई टीच यू, यू शुड गो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। और तब जाके मुझे पहला झटका लगा था कि मैं कैसे मैनेज करूं, कि जिस विद्यार्थी ने 10वीं में एसएससी बोर्ड में रैंक पाया था, जिस विद्यार्थी ने 10वीं तक हमेशा पहला नंबर हासिल किया था क्लास में, और अब वो शायद इकोनॉमिक्स के एग्जाम में फेल के कगार पर खड़ा था, तो क्या करूं मैं? इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू टेक द हेल्प ऑफ द राइटर, टू टेक द हेल्प ऑफ द स्क्राइबर। इनफैक्ट मेरे दोस्त लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा कि आप, तुम टेंशन मत लो, हम तुमको एग्जाम में पास करके देंगे। बट दैट, आई मीन, आई रियलाइज कि ठीक है, अभी ये मुझे पास करके दे देंगे, आगे क्या होगा, राइट? नाउ दैट्स व्हेन आई एक्चुअली वेंट फॉर अ प्राइवेट कोचिंग। मैं बता रहा हूं आपको कि जब मैंने एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे के बाद, और शायद सरिता जी तभी मैंने आपको बहुत मिस किया था, राइट? बिकॉज दैट टाइम इंडिगवे जैसी कोचिंग क्लासेस या हमारे सहायक रूप पिलर नहीं थे, राइट? वी हैड नो वन। And I remember after almost visiting 10 to 15 coaching classes, one of the one of the teacher at the coaching classes said, "Can I have your number? Can I call you somewhere?" मेरी परिस्थिति तो ये थी कि मेरे पास फोन भी नहीं था उस जमाने में। मैंने बोला कि सर, मेरे पास तो नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है, पेजर भी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो मैं आपको आकर वापस मिलूंगा और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बोला नहीं नहीं, आप यहाँ पर मत आना, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में नॉट लाइक दैट, बट आप मुझे आपका पता दे दीजिए और फिर मैं आकर आपसे मिलूंगा। अब जब वो आए, उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू ट्राई। बोला थैंक यू सर, और उन्होंने हमें पढ़ाना चालू किया। I must tell you, when I'm actually remembering this incident, thank you for making me nostalgic right now. He was none other than, Professor Aggie, who then became the, principal of
St. Xavier's College, right? So my association with Aggie, is very, very old, right? And he actually started teaching me. वो बोला क्यों आप इकोनॉमिक्स की ग्राफ्स नहीं कर सकते हो? उसने क्या किया, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट, उन्होंने अपने साइटेड स्टूडेंट्स को धागों से इकोनॉमिक्स के मैप्स बनवाना चालू किया ताकि हम उसको छूकर पता चल पाए हमें कि डिमांड कब क्या होता है, सप्लाई कब क्या होता है. And that particular innovative idea became such a hit idea कि ये एक्चुअली उन्होंने एज अ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया. और आज की तारीख में भी शायद वो रुपरेल कॉलेज जहां पर मैं गया था, वहां की लाइब्रेरी में शायद उपलब्ध है ये. Having said this, वापस जब मेरी 12वीं हो गई तो मुझे अब वापस कुछ तो दूसरा अलग करना था, बिकॉज रुपरेल ने मुझे एक अनुभव दे दिया था कि ठीक है, यू कैन डू समथिंग डिफरेंट एंड यू कैन सक्सीड, राइट? क्योंकि अब मुझे लॉजिक से डर नहीं लगता था, इकोनॉमिक्स से डर नहीं लगता था, क्योंकि मैंने वो पहला स्टेप ले लिया था. आई हैड टेकन दैट फर्स्ट स्टेप, व्हिच वाज आई वाज स्कैर्ड अबाउट, जिससे मुझे डर लगा करता था. अब जब दूसरी 12वीं कक्षा मैंने उत्तीर्ण की तो मुझे लगा कि अब आई शुड गो फॉर सेंट जेवियर्स कॉलेज. सेंट जेवियर्स कॉलेज में 1990 तक नेत्रहीन लोग एडमिशन लिया करते थे, बट उसके बाद ऑलमोस्ट 10-15 साल बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन नोबडी वाज एडमिटेड, राइट? एंड देन आई अप्लाइड. मुझे आज भी याद है जब मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया, मुझे कई लोगों ने ना कहा था, मुझे खुद के प्रियजनों ने ना कहा था. बट तब जाकर मैंने अपने आप से एक दिन पूछा कि व्हाट डू आई वांट टू डू? डू आई रियली वांट टू टेक एडमिशन और नॉट? तो मैंने अपने आप से बात की, मैंने रिफ्लेक्शन किया, मैंने रिट्रोस्पेक्शन किया, राइट? और मैंने कहा कि ठीक है, दो एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स अगर ना कह रहे हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू गो फॉर इट, आई विल गिव अ ट्राई. और वो क्यों ना कह रहे थे, उसका रीजन भी बहुत सिंपल था, एंड व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. तो वो इसके लिए ना कह रहे थे क्योंकि बोले कि सेंट जेवियर्स कॉलेज में तो इंग्लिश का व्यवहार बहुत ज्यादा होता है, आप कैसे मैनेज कर पाओगे, वहां के तो कुत्ते भी अंग्रेजी में भौंकते हैं, और हमें तो अंग्रेजी का ज्यादा उतना सराव नहीं था, प्रैक्टिस नहीं थी, हाउ वुड आई मैनेज? तो मैंने कहा कि if I do not manage now, when would I manage? So it's a question of getting managed or getting damaged. ये वाली चीज थी. तो मैंने अपने आप को सुना और मैंने कहा नहीं, I will give a try and let me see at the most क्या होगा, मेरे 6 महीने 1 साल बर्बाद होगा. मैंने जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया. खैर उसकी भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, कभी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैं जरूर बताऊंगा किस तरह मुझे एडमिशन मेरा मिला था, किस तरह हुआ, मेरे हॉस्टल के पहले चंद दिन कैसे थे, बिकॉज इट वाज अगेन अ कंप्लीट न्यू एनवायरनमेंट, इट वाज अ न्यू कंप्लीटली क्लाइमेट, no friends were around, nothing was there, right? तो कैसे वो 3 साल बीते अभी भी मुझे याद है, and I treat them as one of the golden period of my life. Okay, उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो सारे लोग कंप्यूटर की बातें करते थे. तभी कंप्यूटर एक्चुअली काफी प्रचलित हो रहा था. कंप्यूटर वाज वेरी वेरी न्यू, पर अनफॉर्चुनेटली ब्लाइंड के नसीब में वापस कंप्यूटर बहुत ही कम था. और मुझे सीखना था, कंप्यूटर सीखना था, बिकॉज एवरीवन यूज्ड टू चैट, एवरीवन यूज्ड टू गो ऑन टू द हॉटमेल एंड रिडीफ ये वो, और मैं नहीं कर पाता था. तो अब मैं कितने लोगों की हेल्प लूं, टू टॉक विद द गर्ल्स, टू टॉक विद द फ्रेंड्स, टू टॉक विद द आई मीन उन लोग पूरी पूरी रात जाके साइबर कैफे में कंप्यूटर एक्सेस किया करते थे. व्हाट शुड आई डू, हाउ डू आई मैनेज? तब जाके मैंने कहीं से पता करा, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि तभी इंडिया में राम अग्रवाल जी ने, करिश्मा एंटरप्राइज ने भी कंप्यूटर क्लासेस नहीं चालू किए थे, जो चर्चगेट पे हुआ करता था यहाँ पर बंबई में. तो मैंने
बोला कि मैं कैसे करूँ, क्या मैनेज करूँ, अभी कैसे सीखा जाएगा कंप्यूटर. So that's when I got to know that there was a lady who used to teach computer, and she basically uses JAWS herself, and she is none other than Sushmita Bubna. I became her first student, and I must tell you, मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज, अगर आपको पता हो थोड़ा सा बम्बई के बारे में, तो वो बिल्कुल साउथ में स्थित है. वहां से मैं गोरेगांव सुष्मिता जी के यहाँ पर, जो बिल्कुल करीबन अगर मैं कहने जाऊँ तो 1.5 से 2 घंटे का ट्रैवल टाइम होता है. आई यूज टू गो देयर, एंड आई मस्ट टेल यू, उन दिनों में मेरे पास ऐसे कोई सुविधाएं नहीं थी कि मेरे पास पैसा हो कि मैं टैक्सी से या चला जाऊं. मुझे हार्डली कुछ पैसे मिलते थे अपने पेरेंट्स से, एंड दोज यूज्ड टू बी गेट स्पेंड इनटू माय कॉलेज फीस एटसेट्रा एटसेट्रा. अब जब मैं ये किया करता था, तब मुझे ये सूझा कि टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, टू मैनेज माय एक्सपेंसेस, हाउ अबाउट me started working and earning side by side. तो आई वॉज वेरी गुड एट म्यूजिक. मैं काफी अच्छा था म्यूजिक में. मेरी ट्रेनिंग हुई है हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में फ्रॉम पंडित दिनकर कैकेनी जी. बड़े ही गुरु माने जाते हैं. अभी तो खैर नहीं रहे वो, उनका देहांत हो चुका है. बट मैंने उनसे एक बात की कि मुझे मेरा एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए आई एम थिंकिंग ऑफ starting to teach music. तो उन्होंने कहा, राजेश, you don't need to worry about it, I will get you the students. और मुझे अभी भी याद है कि मेरी पहली तनख्वाह 500 रुपया थी उन दिनों में. Now I must tell you, this 500 रुपया actually was nothing less than a 50,000 of today. क्योंकि उस 500 रुपए ने मेरा इतना सारा काम किया था कि मैं आपको क्या बताऊं. एनीवेज, अब रही बात ग्रेजुएशन की. ग्रेजुएशन में आते आते ये हुआ कि अब आगे जाके मैं क्या करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा. तो सारे एमबीए के बारे में बात कर रहे थे, सारे अब्रॉड जाने की बात कर रहे थे. अब मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, मेरे पास ऐसा कोई सपोर्ट फंक्शन भी नहीं था, कि सिस्टम भी नहीं था कि मैं अब्रॉड जाऊं. पर मैंने कहा कि राजेश, चल एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं, एटलीस्ट अप्लाई तो करते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि कहां से रास्ते निकलेंगे. एंड इन दोज डेज ब्लाइंड को एमबीए में एडमिशन लेना was not as easy as today. In fact, I'm sure Homiar, Zainab, and rest all those probably are from those particular era would agree with me कि उन दिनों में एमबीए ब्लाइंड के लिए एक्चुअली बहुत ही कम लोगों ने किया था. I know Ramakrishna is one of the exceptional case that we have, who did MBA almost in 85s and 90s. But after that, there were any, because ब्लाइंड के जिंदगी में मैथ्स और साइंस का बेस ही नहीं है. हमें स्कूल में कभी मैथ्स और साइंस शायद क्यों मुझे तो नहीं सिखाया गया था. और एमबीए की जो एंट्रेंस होती है, उधर ही हमें मैथ्स और साइंस की जरूरत लगती है. तो मैंने मेरे दोस्तों से बात की कि यार कैसे करेंगे, मैं अप्लाई तो करूं, पर यार मुझे तैयारियां कौन करवाएंगे. हमने साइंस जो पढ़ा था मराठी लैंग्वेज में, अब एमबीए का जो एंट्रेंस होता है वो सारा अंग्रेजी में होता है, तो कैसे मैनेज करें. मुझे तो कोई कंसेप्ट भी इंग्लिश में नहीं आती थी. मैंने 3 महीने एक वापस प्रोफेसर जी को रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने मुझे पढ़ाया. बोला, राजेश, वी विल ट्राई. And I said, I know that I'm preparing for the failure, but it's okay. Sometimes failure actually teaches you the most important lessons of your life. And I think with me, my preparation for failures always has taught me so many things. And of course, I wish कि even आप लोगों के जिंदगी में फेलियर आपको काफी कुछ सिखा जाए, ना ही आपको नर्वस कर जाए. तो हमने 3 महीने की कड़ी तैयारियां की, and that's how I applied to 3 colleges. I can't forget that. First I applied to Leeds in London. The second I applied to TISS, Tata Institute of Social Sciences. And third I applied to Nottingham University, again in UK.
guys, now I must tell you this. In meanwhile, मेरा जो साइड बिजनेस, जो मैंने म्यूजिक सिखाना या प्रोग्राम करना वगैरह चालू किया था, it had reached a quite at a peak. मैं इतने सारे बैंड में बजा रहा था, काफी बड़े बड़े उस्तादों के साथ मुझे संगत करने का मौका मिला था. इनफैक्ट I also did couple of albums, etc., etc. And I can't forget this. The day when I was actually doing the show with Abhijit Sawant, if you remember, Abhijit Sawant बहुत ही बड़ा नाम है, इंडियन आइडल का पहला इंडियन आइडल रह चुके हैं. तो उनके साथ मेरा शो था बंबई में, and that's when I was supposed to appear for my TISS interview. अब ये डिलेमा था कि क्या मैं TISS का इंटरव्यू अपीयर करूं कि अभिजीत सावंत के साथ मेरा म्यूजिक शो करूं. क्योंकि अगर मैं और मैं इट वाज लाइक मैं ना ही उस पार जा सकता हूं ना ही इस पार जा सकता हूं, क्या करूं मैं. मैंने वापस अपने खुद के साथ बात की, रिट्रोस्पेक्शन किया, एंड मैंने कहा कि नहीं ठीक है, म्यूजिक कैन ब्रिंग मी मनी अप टू सर्टेन लेवल, बट इफ आई गो फॉर MBA, it will bring me the life. It will bring me the life which I want to give it to my family, which I want to give financial independence to my entire family. And that's how kind of I chose to kind of not to go for that show. मैंने अभिजीत से बात की, मैंने कहा यार मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा ऐसा ऐसा है. उसने बोला राजेश इसमें क्या होगा, 2 साल तुम पढ़ोगे, you will not get even campus placement anywhere, ये वो. बोला ठीक है जो भी है, but I want to kind of not just open that particular path for me, but I want to open that path for many others. मुझे ये क्षेत्र सिर्फ मेरे लिए नहीं खोलना था, पर किसी और नेत्रहीन लोगों के लिए भी खोलना था, because I knew that कि MBA could be done by many others blind people. तो मैंने TISS में एडमिशन लिया. जब मैंने एडमिशन ले रहा था, I must tell you, I'm the third blind person who got admitted to TISS. Now जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरे प्रोफेसर जी ने मुझे बहुत ही क्लियर कट ये बात कही थी कि राजेश, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, देन वी आर सॉरी, वी कैन नॉट गिव यू दिस. बट मैंने तभी उनसे यही बात की थी कि देखिए सर, दैट मीन्स आपको आपकी पढ़ाई पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है. If you are not able to teach me, then why any corporates would able to hire me? I must tell you this particular sentence, even that professor HOD called Dr. Gangopadhyay remembers even now, because we keep meeting in various conferences, various forums, and he does talk about this. बोला कि वो बंदे का क्या कॉन्फिडेंस था, उस बंदे ने जिस तरह एक वाक्य कह गया, I made him compulsory to give me the admission. He brought me the admission. अब उस जमाने में ना ही कोई बुकशेयर जैसा मेरा साथी था, ना ही कोई बुक्स एक्सेसिबल थे, ना ही ऑडियो बुक्स अवेलेबल थे. सब कुछ we had to do through the recording, through the scribe, through the reading. And MBA में I'm sure you would know कि कितनी पढ़ाई या कितना reading लगता है, right? So having said that, I crossed that milestone as well. After doing that, when I was appearing for my final placement, there were many companies who rejected, right? But I never gave up. मैं बोला ठीक है, कोई ना कोई कंपनी तो आएगी, कोई ना कोई कंपनी तो मेरे लिए बनी रहेगी. And that's when IBM came on the final placement. They chose me. I wasn't even aware of IBM. कि IBM क्या करती है. मैं गुज्जू हूँ, मैं गुजराती हूँ. I wanted to be in the investment bank. I wanted to always be close with the stock market, trading, those kind of stuff. पर मैं अब जॉब मिली, मैंने जॉब ले लिया. अब पहले 6 महीने इतनी डिफिकल्टीज थी because I had to go to Bangalore, to join IBM. पहली बार मैं अपने लोगों से दूर, अपने शहर से दूर, अपने भाषा से दूर मुझे जाना पड़ रहा था.
I wasn't even aware the areas of the Bangalore, and I went. And first 6 months were so very difficult. पर मैंने कहा कि भैया आप जब ओशन में उतरे हैं तो there is something called credibility management, वो तो करना ही पड़ेगा. अगर मैं यहां से क्रेडिट नहीं बनाऊंगा तो इसका कोई मतलब नहीं है. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि पहले 3 साल मैं उनको दे दूंगा और बाकी के 30 साल उनसे लूंगा. क्या लूंगा? तो पहले 3 साल मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा और बाकी के 30 साल मैं डिमांड करूंगा. राइट? तो अब ये सारी चीजें जब हो रही थी तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे मैंने बहुत ही फोकस किया था. रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे यानी क्या? तो बेसिकली सी आई स्ट्रांगली बिलीव कि टेक्निकल कोर्सेस, टेक्निकल स्किल सेट वी कैन डेफिनेटली अचीव. राइट? आई स्टिल रिमेम्बर कि तभी हमें लैपटॉप पे लिखने के लिए कहा गया था कि आप सारे अपने खुद के ईमेल ड्राफ्ट करोगे, आप ही सब कुछ कामकाज करोगे, जो मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल वाली बात थी, क्योंकि अभी तक I was dependent on the scribe, right? But अब जब के ये बारी आई तो मैंने उसको ना नहीं कहा, मैंने स्वीकारा. राइट? उन्होंने कहा कि आपको ऐसे ऐसे रूरल एरियाज में जाना होगा, you will require to travel into the very remote places of Assam, very remote places of Bihar, very remote places of Rajasthan. मैंने कहा कि क्यों नहीं जाऊंगा मैं. मैंने अपनी मोबिलिटी पे डेफिनेटली गौर फरमाया एंड आई डिड दैट. उसके बाद ऑलमोस्ट जब 2 साल हो चुके थे तो मैंने कहा कि ठीक है, अब मुझे डिफरेंट रोल करना है. आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द रोल ऑफ कैंपस हायरिंग व्हिच आई वाज डूइंग, through which I was supposed to be coordinating with various colleges across India, outside India. But I said I would like to do a different roles. Mind you, even then I had almost 10 people working for me, right? और आज के तारीख में मुझे पता है कि बहुत ही वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, मैं उस पे एक्चुअली घंटे बात कर सकता हूँ आप लोगों के साथ कि किस तरह क्या क्या हुआ. बट एक बात मैंने तय कर ली थी कि मैं किसी को ना नहीं कहूंगा, बट हाँ कहने के पहले मैं 10 बार क्लियरिटी जरूर ले लूंगा और हाँ करने के बाद मैं वो करके रहूंगा. तो हैविंग सेड दिस, जब मुझे रोल चेंज करना था, आई मस्ट मेंशन दिस कि उन्होंने कहा आपको क्या रोल करना है. तो मैंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग साइड में जाना है, मुझे कंसल्टेंट साइड में जाना है. तो बोले कि आप कैसे मैनेज करोगे, आप ब्लाइंड हो, आप नेत्रहीन हो. अब ये सारी बातें आईबीएम में जो अदरवाइज विच इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंक्लूसिव मानी जाती है दुनिया में, वहां पर मुझे फेस करना पड़ा था. आई सेड दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल ट्राई, लेट अस ट्राई एट लीस्ट एंड लेट अस सी कि हाउ वुड आई एबल टू मैनेज. मैंने कई सारी चीजें, राइट फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज, राइट फ्रॉम द खड़े कैसे रहना है, राइट फ्रॉम द एंगेजमेंट कैसे करना है, बेसिक चीजें मैंने लोगों से सीखी. मैंने फीडबैक लिए लोगों से, मैंने इतने सारे फीडबैक लिए मेरे मैनेजर से, मेरे पीयर से, मेरे दोस्तों से. मैंने कहा देखो, मुझे एक ही बात पता है कि मैं एक सफर पे निकला हूं, मुझे आप लोग बताओ कि मैं क्या करूं. So I used to send, by then the mobile had come, I had also able to afford to get a mobile. तो मैं मैसेज भेजता था व्हाट्सएप पे कि बताइए कि मैं क्या सुधारूं, आप लोगों को क्या लगता है. तो बोलते कई बार आप जिस तरह रिएक्ट कर देते हो, राइट, सिचुएशंस पे आप जिस तरह रिएक्ट कर देते हो, आपको नहीं पता चलता है क्योंकि आपको नहीं दिखता है, बट सामने वाले को वो अच्छा नहीं लगता है, द वे दे मेक द फेशियल एक्सप्रेशन. बोला ये कैसे पॉसिबल है, मैं कैसे इसको सुधारूं. तो अगर रिएक्ट ना करूं, अगर मुझे कोई अच्छी चीज नहीं लगी है तो मैं क्या करूं. सो दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्डिंग.
rather than reacting, right? तो मैंने कहा ठीक है, मैं धीरे धीरे करके उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, धीरे धीरे करके लोगों के साथ कम्युनिकेट करके मैं उसको बताऊंगा कि किस तरह हो सकता है, किस तरह हमें तकलीफ होती है, किस तरह हमें हेल्प चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह. Now, having said this, when I was doing all these things, there were many challenges which were being thrown to me. I was being asked to go to the places like Karachi. I was being asked to go to the places, very very difficult tapus, islands of Philippines, right? और मुझे पूछा गया था कि राजेश आप कैसे मैनेज करोगे, do you have any difficulties? मेरा देखिए, everyone would have a difficulty, but having me a difficulty of blindness, we already know it, so let's prepare. और फिर उस हिसाब से जाके मैंने ट्रैवल किया. मुझे कई बार मेरे फैमिली से बाइकआउट किया गया था. आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वेंट टू कराची, मुझे ये कहा गया था कि यू कांट गो, आई विल नॉट लेट यू गो. इस्लामाबाद जब मैं गया था, मुझे पता है कि मेरे लोगों ने मेरे से बात करना बंद कर दिया था कि व्हाट आर यू डूइंग, बट आई सेड नो, आई विल गो with entire precautions, I will go. I still remember when I traveled to one of the country, I can't reveal the name though, I actually had so much of difficulty because I was denied a taxi travel there because I'm a blind. मैं क्या करूँ, रिएक्ट करूँ कि रिस्पॉन्ड करूँ, राइट? तो ये सारी कठिनाइयाँ आई. धीरे धीरे करके हमने रिस्पॉन्ड कैसे करते वो सीखा. सबसे बड़ी बात during this last 15 years if I have developed is listening my own stuff. कई बार हम लोग listening मिस कर जाते हैं. We don't even listen people. We do not even read between the lines what they are trying to tell us, and that's where many problems, many challenges emerges. Like example, कई बार मेरे मैनेजर कहते हैं कि you will not able to do it. Now it is very easy for us कि उनको हम चैलेंज कर दे कि क्यों हम नहीं कर पाएंगे, but let also understand कि where they are coming from, what are they trying to say, right? कई बार ये होता है कि कई सारे ग्राफ्स होते हैं, कई सारे पाई चार्ट्स होते हैं, कई सारे Excel related stuff होते हैं, right? Which it's difficult for us. But क्या हमने वो ट्राई किया है? क्या हमने उस पर कोशिश किया है? I'll give you my last instance and then I will pause there because I think quite a lot talking has happened. Okay, so I do not want to bore you further. आज की तारीख में we are all going through the COVID situation, coronavirus wala situation. We are all working from home, but that's when the accessibility has taken a completely new shape for all of us. We are using technologies which at times are accessible, which are at times not accessible. अब कई बार मैंने ये देखा है कि कई सारे हमारे नेत्रहीन जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, they do not want to agree if something is not accessible. Why? If something is not accessible, is not accessible. हम क्यों खुले दिल से इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और उस पे कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस करने लगाते हैं? हम भी खुद करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं. तो देयर आर मेनी ब्लाइंड स्पॉट्स. इसको मैं ब्लाइंड स्पॉट्स कहता हूं, ऑफ ब्लाइंड पीपल, राइट? कई बार हम लोग ब्लाइंड लोग के ब्लाइंड स्पॉट्स सिर्फ हमारे आड़े नहीं आते हैं, बट हमारे कम्युनिटी के भी आड़े आते हैं. Now that's where, how do we manage those blind spots? How do we bring the conscious awareness? आज जैसे एक प्रोडक्ट है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, and which we use for all our video conferencing, and it was not accessible 2 years at all. And I met couple of blind people of that company.
वो बोलते हैं कि नहीं राजेश ये मोबाइल पे होता है। मैं बोला अगर मोबाइल पे होता है तो लैपटॉप पे भी होना चाहिए। बोलते नहीं लैपटॉप पे नहीं हो सकता। मैं बोला क्यों ऐसे? अगर मोबाइल के डिवाइस से अगर वो एक्सेसिबल है वो प्रोडक्ट, तो लैपटॉप से भी होना चाहिए। फिर मैंने उस कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बात की एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अलोंग विद देम। और आज 2 साल के बाद दे अग्रीड कि इट वाज नॉट एक्सेसिबल, और आज जाके वो लैपटॉप से भी उन लोग ने एक्सेसिबल कर दिया है। तो आज की तारीख में मुझे ऐसे लगता है अ क्रेडिबिलिटी मैनेजमेंट, योर ओन ब्रांड बिल्डिंग, क्योंकि हमारे एज अ ब्लाइंड पर्सन ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुकी है एज अ ब्लाइंड, और उसके बाहर आकर एक दूसरी ब्रांड इमेज क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अब कैसे करें? तो उसके लिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? हमें ट्रांसपेरेंट होना है, हमें ऑनेस्ट होना है, हमें इंटीग्रिटी वाइज होना है, क्या होना है? सो दैट्स समथिंग वी नीड टू डिसाइड। हैविंग सेड दिस, हाउ डू वी स्टे रिलेवेंट टुडे? बिकॉज आज के तारीख में करियर रिलेटेड अवेयरनेस इतनी आ चुकी है लोगों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इतने सारे प्रोडक्ट में आ चुके हैं एआई रिलेटेड, कि तुम सिर्फ अपनी चॉइसेस डालो और आपको वो बता देंगे कि कौन से करियर आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है, नहीं है, सारा ऑटोमेटिकली आ जाता है। नाउ हैविंग सेड दिस, we as a blind people, can we still dependent on the reservation? Can we dependent on the quota system? I don't think so. I don't think so. Because अभी मैं एक फोरम में बात कर रहा था day before yesterday, and there was a question to me saying that PWD को क्या कभी निकाला जा सकता है कंपनी से? मैंने बोला क्यों नहीं निकाला जा सकता है? If the PWD, people with the disability, has not performed, company has all right to kind of lay off them. And myself, मैंने 2 से 3 PWD को निकाला हुआ है। क्यों ना निकाले? If we people are not understanding how to stay relevant and how to ask for the right thing with the right people, then there is no point why we should not be asked to get laid off. On that particular note, I'm going to pause myself and Homiar, if Sarita ji ko laya jaye, तो that would be fantastic. Thank you so much, Rajesh. 100% I agree with you. We need to rebrand ourselves, not to be seen as persons with a disability, but we need to show our ability to the world. This is what we can, and that is why we want that job. This is the phrasing which should be coming out, not that we are disabled, hence we want that job. Thank you so much. Brilliant. तो इस मुकाम पे सरिता जी को इनवाइट करते हैं। प्लीज कम इन सरिता। Thank you, Homiar, and thank you, Rajesh. Your story, in fact, is very, very inspiring. और मैं भी अपने सभी फ्रेंड्स से कहना चाहूँगी जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है कि we also want to communicate the same message. And हमारी thought process भी यही है कि अगर एक visually impaired is technologically empowered, अगर उसे digital literacy में reading आ रही है या फिर लिखना आ रहा है, then he is equal. In fact, मैंने देखा है जितने भी स्टूडेंट्स से मैं मिली हूँ और जिनकी भी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, they are much ahead of the sighted or so to say non-disabled community. Believe me, उनका जो passion होता है, उनका जो motivation होता है, because they have this technology skill, we don't believe they are less than anyone. In fact, I've seen them working much hard. मैंने उन्हें देखा है दूसरों से ज़्यादा मेहनत करते हुए और दूसरों से ज़्यादा अचीव करते हुए. And thank you guys for having me. I'm Sarita Chand. So I'm going to first tell you the importance of passion. जितनी भी हम करियर की बात करते हैं,
it is very, very important. You are a disabled person or you are a non-disabled person. It is always about, career should always be about what you're passionate about. जो आपको पसंद है, आपका करियर उसके हिसाब से होना चाहिए, ना कि बाकी सब क्या कर रहे हैं या फिर कहाँ जॉब सिक्योरिटी है या कहाँ हमें एक आराम से जॉब मिल सकती है. Those should not be the career choices, because long term में हम खुश नहीं होंगे. चाहे आप sighted हो, चाहे आप differently abled हो, that will not make you happy. You may get the money that you want, but it will not be a career, you know, which you want to have for rest of your life. तो इसमें सबसे पहले मैं बात करना कि आई थिंक आप लोग काफी जने जानते हो, माय फेवरेट स्टोरीज इज कार्तिक. So one thing I've realized is when we educate a girl child, we educate a family. But when we educate differently abled, we inspire the entire community. जैसे कि अगर हम एक गर्ल चाइल्ड को पढ़ाते हैं तो उसकी फैमिली को एजुकेट करते हैं, बट जब हम एक डिफरेंटली एबल्ड को पढ़ाते हैं तो द इंटायर, you know, he becomes the role model for entire community. That is Karthik. You know, a child who studied science, उसको मना किया गया था, you cannot give science, he gave science. IIT ने उसका एडमिशन नहीं लिया तो he went to the world's best university, Stanford. पूरी स्कॉलरशिप मिली and today he's working with Microsoft, one of the most accessible companies and equal opportunity employer. एंड बाकी भी मेरे जितने भी स्टोरीज में शेयर करूंगी वो सभी वही बच्चे हैं जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, who do not tell us कि oh we are less, they just tell us कि give us equal resources and we are no less than anyone. Give us equal resources in terms of accessible resources. So what happens, say I'll tell you about my passion. I'm a MBA finance. मैंने MBA finance किया है पुणे से, and I was working in one of the best investment banks, Goldman Sachs. बहुत ही अच्छी नौकरी थी. But my passion was to become a businessman. My passion was to कि मैं खुद का कोई बिजनेस करूं. मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला, एड्यूप्रेस्टीज. मैंने 10 साल के लिए वो इंस्टीट्यूट चलाया है. So उस इंस्टीट्यूट में बेसिकली हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बीटेक्स, MBAs, people with 0 to 20 years of experience used to come to us, and they used to tell us कि वो हमें बोलते थे कि we want to learn more because we have realized कि जो मैंने CA में सीखा था is no longer relevant. आज मैं ब्रांड मैनेजर हूँ बट डिजिटल मार्केटिंग आ चुका है. मैं इंजीनियर हूँ बट मोर एंड मोर पीपल आर आस्किंग अबाउट एनालिटिक्स. सो एक चेंज हमने देखा कि there are a lot of people who are so passionate about their career that they want to be continuous learning. So these are the two premises कि एक हमारे अंदर पैशन होना चाहिए जो हम करना चाहते हैं उसको करने का, और दूसरा होना चाहिए उसे आगे ले जाने का. जैसे कि राजेश से मेरी पहली बार जब बात हुई, I was so impressed. मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि he has achieved that level and he was telling me, Sarita, I wanted to do a course on HR analytics. I was amazed that, you know, he is not looking for just that, yes, I am already heading. मैं आज 700 लोग मेरे को रिपोर्ट कर रहे हैं. I am representing so many countries. He still wants to learn more. He wants to go to the next level. So that is what is very important, even if you are a sighted or a differently abled, because अपने आप को इंडस्ट्री के लिए और खुद के लिए आगे पढ़ते रहना is very very important. So after EduPristine में हमने करीबन 1 लाख लोगों को ट्रेन किया and it was one of the India's biggest professional training institute, and हमने फिर उसको एक US based organization को सेल कर दिया. उसके बाद I decided कि I will follow my second passion. My second passion was always NGO. You know, I believe that yes, I have the experience in the education sector, via which I can always help others. So exploration stage में मैं एक NGO गई, Saksham. It's a NGO in Noida. It's a blind school. There I met my favorite child, Reema. She comes from her parents are uneducated. Obviously, she's a very very bright child. And she waited for 1.5 hours to wait for her turn. And जब उसकी बारी आई, I thought, you know, she will maybe just be like others. She will tell me something, same story. But she told me that I am in 9th class, but I want to get into IIT. And I want to create accessible resources for the differently abled so that education में हमारे लिए कोई hindrance ना हो. And I want to learn artificial intelligence. तो रीमा ने हमें कहा कि मैं IIT से बीटेक करना चाहती हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहती हूँ,
so that I can create solutions, मैं दूसरों के लिए solutions create कर सकूं ताकि वो भी उनके लिए कोई constraint ना हो accessible education का. And I was impressed क्योंकि in EduPrestige में मैं इतने बच्चों से मिली हूँ जिनके 90, 95, 100 कितने % मार्क्स आते हैं, but they don't know कि हमें 12th के बाद क्या करना है या 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है या फिर कहाँ करना क्या है, what profession do I choose. They have no clarity, and this child has so much of passion, and she is so inspired to give back also. So she's not only talking about ki I want to become something, but she's also talking about how can she help everyone else, and that was very, very inspiring for me. And along with her, I met Prince. That was my another student. वो भी एक NAB दिल्ली का बच्चा है जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुका है, नेट क्लियर कर चुका है, JRF ऑलरेडी कर रहा है, JRF से मिल रहा है, एंड ही इज इन JNU प्रिपेयरिंग फॉर हिज UPSC. तो प्रिंस ने कहा मैं UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ. हमने कहा ठीक है प्रिंस, बट आपने अभी तक कितना पढ़ा है? तो उसने हमें बताया कि आई हैव बीन वर्किंग हार्ड एंड आई वांट एक्सेस टू मटेरियल फॉर UPSC प्रिपरेशन, और मेरा जो प्रीलिम एग्जाम था वो कुछ मार्क्स से छूटा था. दैट वाज इम्प्रेसिव कि बच्चा पहले से मेहनत कर चुका है उस डोमेन के लिए एंड ही जस्ट नीड्स हेल्प. तो मैंने उसे कहा कि ठीक है आप एक्सप्लोर करिए कि कौन सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको पसंद है, we will help you to get enrolled in that institute. उसने UPSC पाठशाला का नाम का एक इंस्टीट्यूट में enroll किया. We helped him with the enrollment process. Now the material that he has received was accessible. The videos, obviously he could listen to the videos, but जो live classes जो connect होती थी, he could not access them. But he did not give up. He said, I cannot access them. He spoke to the teacher. And the teacher used to take him on phone. वो personally उसको phone पे लेके सारा lecture सुनाता था. तो he worked out his way. उसने अपना खुद का एक रास्ता बनाया कि इस चीजों से मैं adjust करके अपना पूरा curriculum कर सकता हूँ. And similarly for रीमा के लिए जब हमने उसे 9th क्लास का मैथ्स और साइंस का आकाश का एक पेन ड्राइव दिया जिसमें मटेरियल fully accessible नहीं था. But she ensured that she learned some shortcuts from her sighted teachers. And she navigated the entire curriculum. उसने अपना पूरा curriculum पूरा किया. I was so impressed कि भी there were hindrances. See, there will be hindrances, no doubt about it. अभी education in India will not become completely accessible. But these children are working hard. They are finding ways to learn. And फिर हमने अभी रीमा को Python training के लिए डाला. She is an exceptionally brilliant child, learning really well. And we are planning to enroll her for some other programs, which will be the moment she completes Python, which will be around artificial intelligence. So here our story starts. हमने एक platform अब create कर दिया है, Indic AI Foundation, जहाँ पर you will find accessible courses for say academics, professional और competitive exams. इसमें क्या करते हैं हम बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं, जैसे करियर लॉन्चर है, जैसे वेदांतु है, जैसे अड्डा 24/7 है, जो भी इंडिया का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है. दे हैव कंस्ट्रेंट्स बिकॉज उनका मटेरियल बहुत हजारों घंटों का मटेरियल होता है. तो वी रिक्वेस्ट देम टू गिव us the material and we create it in accessible format and upload it on Indic AI Foundation. तो आप लोग भी इन कोर्सेज में रजिस्टर कर सकते हैं. राइट नाउ मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज एंड सम ऑफ आवर कोर्सेज आर जो हमने किया है कि वी हैव अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. वी हैव अराउंड 200+ visually impaired who are enrolled in that course. Then we have financial literacy course जिसमें आप फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में सीखते हो. Then we have finance for non-finance course जिसमें आप finance के accounting concepts के बारे में सीख सकते हो. Then we have a course on वेदांतु का, जैसे क्योंकि जैसे राजेश ने भी बताया and मैंने भी देखा ये चीज कि मैथ्स साइंस के जो concepts हैं बच्चों के वो clear नहीं हैं. They have reached a graduation or a post graduation level. They are writing different competitive exams, but वो जो 4th 5th का भी मैथ्स था वो नहीं आ रहा है या लॉजिकल रीजनिंग नहीं आ रही है. तो हमने जो इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है वेदांतु, उनके साथ टाई अप किया एंड they leave me at very 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 less price. उन्होंने सारी क्लासेस में हमारे बच्चों को इनरोल किया एंड साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती हैं. Every child can get personalized extra classes at
negligible cost and which we normally help if the child is from a less than 2 lakh family income. तो इसमें क्या होता है कि once you enroll for these courses, we believe in one premise कि you believe in self learning. You know, we don't push you to learn. What we do is हम आपको फोर्स नहीं कर सकते सीखने के लिए, बट हम क्या करते हैं, जो सीखते हैं उनको हम रिवॉर्ड करते हैं. जैसे कि हमारे पास बहुत बच्चे थे. सबसे पहले जब हमने सेमिनार किया, वी गॉट अराउंड 100 स्टूडेंट्स, मोर देन 95 वांटेड गवर्नमेंट जॉब. तो हमने कहा ठीक है, हम बैंक पीओ का जो कोर्स है एक्सेसिबल फॉर्मेट में ले आते हैं. तो इनको हम ओपन कोर्सेज बोलते हैं. बैंक पीओ का फॉर्मेट का सारा कोर्स आ गया. तो नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व यूजिंग एनालिटिक्स इज कौन से बच्चे उस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, कौन से बच्चे उसके टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन से बच्चे वहां पे डाउट्स रेज कर रहे हैं जो हम उनकी क्लैरिफाई करा सके. तो जो बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं या फिर जो बच्चे ज्यादा आगे बढ़ रहे होते हैं, उन बच्चों के साथ फिर हम उनको ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए एनरोल कर देते हैं, wherein a child can attend live trainings with again a leading institute who will provide them all the trainings, so that the child ka level is also same to any of the sighted child. He is attending a mainstream batch, and obviously most of the times ये institute हमें extra classes भी दे देते हैं हमारे बच्चों के लिए, so that उनकी एक 1-to-1 personal doubt clearing session हो जाए. But वो हम pro courses तभी करवाते हैं जब बच्चा मेहनत कर रहा होता है, when the child is self motivated, when the child wants to learn more. So here in fact हमारी जो एक कोशिश है, और जो राजेश या भी कहा, एक ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या देखते हैं कि ये साइटेड कम्युनिटी के साथ भी है और ये डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ भी है कि हर कोई चाहता है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक सिक्योर जॉब मिल जाए. एंड बिलीव मी, ये सबको नहीं मिलने वाली है. सो ये जॉब सबको नहीं मिलने वाली है बिकॉज जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं, और जॉब्स कई बार इतनी अगेन अगर मिल भी जाती है तो अ गवर्नमेंट जॉब इज नॉट नेसेसरी अ करियर दैट यू वांटेड, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि ये आपके पैशन से रिलेटेड हो. बिकॉज जॉब है, पैसा कमा रहे हैं, क्या मैं खुश हूँ, इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू, देन मे बी गवर्नमेंट जॉब विल नॉट ऑलवेज वर्क फॉर यू. एंड हियर लाइक जैसे आप राजेश का देख रहे हैं कि भैया he has achieved a lot and he is still aspiring for more. मेरे एक और बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट राजेश के लेवल के ही हैं, एंड उन्होंने अलग पाथ चूज किया. वो सेंट स्टीफन के ग्रेजुएट हैं. ठीक है, अमेजिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन है बिकॉज सेंट स्टीफन दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कॉलेज है, एंड ही गॉट थ्रू दैट कॉलेज एंड देन ही डिड हिज MBA फ्रॉम टिस. बट उन्होंने डिफरेंट पाथ चूज किया. उन्होंने पाथ चूज किया कि ही रोट हिज नेट एग्जाम. नेट एग्जाम के बाद JRF भी मिला. उन्होंने PhD में एनरोल भी किया. अब जब JRF खत्म हो गया है एंड किन्हीं कारणवश उनकी PhD इज नॉट कंप्लीटेड, यू नो, ही वांटेड अ जॉब. ऑब्वियसली अभी तक सरकारी जॉब मिली नहीं है और सरकारी जॉब मिलने में टाइम भी लगता है. तो वी वर ट्राइंग ऑन हिज बिहाफ कि कैसे इनको हम एक प्राइवेट जॉब दिला सकते हैं. इट वाज डिफिकल्ट एंड कोविड आने के कारण वो हो भी नहीं पाया. बट आई एम श्योर अगर उन्होंने 10 साल पहले टेस्ट के बाद अगर डायरेक्ट प्लेसमेंट लिया होता तो आज वो कहीं ज्यादा कमा रहे होते. उनके पास भी एक जॉब होता जो वो एक करियर की तरह देखते, जिसमें ही कुड हैव लर्नड मच मोर एंड कंट्रीब्यूटेड मच मोर. माय सेकंड स्टोरी इज माय स्टूडेंट राहुल, एंड he is again an inspiration because he was preparing for his MBA when he came to us. उन्होंने अपना CAT का एग्जाम दिया. He got calls from all IIMs. IIMs बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं, बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया टू डू MBA. FMS उन्होंने कुछ काफी सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया. हमने उन्हें मेंटरशिप के लिए वी पुट हिम ऑन टच विद करियर लॉन्चर के फाउंडर. उन्होंने उनको गाइडेंस दी कि कैसे GD इंटरव्यू में आप प्रिपेयर करते हो. एंड दैट चाइल्ड maintained a professional relationship, and you know the founder of Career Launcher was so inspired that he told him that I'll continue to help you whenever you need me. And Rahul ka ho bhi gaya, he got through FMS, but he didn't want to stop there. FMS में हो गया है, कोविड के कारण अभी कॉलेज नहीं खुल रहा है, तो what next? तो मैंने राहुल से पूछा कि आप MBA फाइनेंस करना चाहेंगे या MBA मार्केटिंग करना चाहेंगे. He said
he chose finance, but उसमें हमने एक चीज नोटिस करी, he said कि जितने भी कॉलेज में साइटेड बच्चे होते हैं वो MBA फाइनेंस के साथ कुछ एडिशनल एग्जाम्स करते हैं ताकि उनको भी बेस्टेस्ट प्लेसमेंट मिल सके, यू नो, एंड दे कैन गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो MBA टिपिकली करते हैं। तो हमने क्या किया कि एक CFA एग्जाम होता है, US का एग्जाम है, एक्सेसिबल नहीं होने वाला, वेरी फ्यू, आई रियली डाउट, आई एम नॉट अवेयर, मैं जानती नहीं हूँ कि किसी ने आज तक दिया है या नहीं दिया। मैंने राहुल को बोला, राहुल मैं आपको ट्रेनिंग में एनरोल करवा सकती हूँ, मेन स्ट्रीम ट्रेनिंग होगी, इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिबल मटेरियल तो नहीं करेगा बट आप सुन सारा सकते हो, प्लस आपके लिए कुछ पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग क्लासेस हम करा सकते हैं। एंड ही अग्रीड, and now the child is preparing for an exam, obviously where the exam is a US based exam, तो हो सकता है वो accessible हो, and resources are partially accessible, but वो अपना रास्ता बना रहा है and he is ensuring कि he is at par with every other sighted child in his batch, you know, he is trying hard। तो उससे क्या होता है कि he will always maintain that extra edge, he is not complaining कि मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, he is making his way out। So इसी कारण हम चाह रहे हैं, a third story I'm going to share is of a student, Bhavya। He is not our student, he mentored some of our students। Bhavya is a child who has pursued science and he has achieved what a sighted child might not have achieved। उसने जो अचीव किया है आज किसी नॉन डिसेबल्ड बच्चे ने भी इंडिया में अचीव नहीं किया होगा। उसको IIT करना था, बट IIT एडवांस जो होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, IIT मेंस और IIT एडवांस्ड। IIT मेंस में जो उसके कट ऑफ आए थे, दैट वाज एट पार विद एनी अदर साइटेड चाइल्ड हु कुड हैव गॉट थ्रू IIT, 97.5 परसेंटाइल। यू नो, उसने ये नहीं देखा कि मेरा कट ऑफ 50 परसेंटाइल में होगा तो मैं 50 ही ले आता हूँ, आई विल स्टिल गेट इनटू इट। नहीं, he worked hard and he obviously has many constraints। देखिए साइंस और मैथ्स का पूरा मटेरियल एक्सेसिबल नहीं है, बट उसने अपनी मेहनत की, he prepared from whatever material available with help of his parents, and he got through the world 2 best universities, Harvard and Stanford, at a scholarship। मतलब I am 100% sure कि कोई भी बहुत कम साइटेड बंदे होंगे जिनको हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से दोनों ऑफर होगा at the scholarship जो भाग्य होंगी। So are there resources? Yes, there are resources। Are they fully accessible? Maybe, may not be। But can we find a way? क्या हम कोई तरीके से उन resources को use कर सकते हैं ताकि हम भी हमारे passion को follow करें? हमारा career should be based on our passion, possible। Bhavya has ensured this, and in fact वो हमारे साथ एक webinar भी किए थे where he was mentoring other children। So you know, one thing is common between all the children whom we are associated with, everybody wants to give back, and they are more than happy to mentor other children, and they have become the role models for the other children। Fourth, मैं बताना चाहूंगी हमारे एक स्टूडेंट के बारे में, मंजोत। अगेन मंजोत एक बहुत ही प्रोफेशनल स्पीकर है, मतलब he has just done his 12th। He had cancer when he was born, and कैंसर की कीमियोथेरेपी की वजह से he lost his sight, and he lost his sight over 7-8 years। It was very, he was a child, he was losing sight, suddenly things started becoming inaccessible for him, but उन्होंने पूरी fight करी, and he has got through best universities in Canada at a very, very good scholarship। So again उनका भी यही सपना है कि I study in the best university, and he is also taking online classes for a lot of our visually impaired children and teaching them English। So which I don't find, see EduPrestige में मैंने बहुत बच्चे देखे, and उन बच्चों को हम कहते हैं कि ठीक है, you have taken training from these good trainers and you have cleared this exam, do you want to mentor a few students, और क्या आप सहायता करना चाहेंगे? I don't know कितने लोग हाँ बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं हम बिजी हैं या कुछ बोलते हैं, मे बी 1%, 5% बोलते हैं, बट यहाँ पर I have more than 80 to 90% of students differently able जो अगर कुछ कर लेते हैं, who come back and help their community। मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा है। So that is the reason it inspires us। ये हमें motivate करता है कि yes, we want to do something for this community which is ready to work hard and which is ready to dream big
and who are ready to follow their passion. मेरी इसमें लास्ट स्टोरी है डॉक्टर चारू दत्ता की. आई एम श्योर आप लोग उन्हें जानते होंगे. ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब एंड उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब ऑब्वियसली वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइंग, क्योंकि या तो कभी काम कम मिलता है या कभी नोबडी अंडरस्टैंड्स योर पोटेंशियल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम मिलती हैं. टुडे ही इज वर्किंग इन TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इंडिया की सबसे बेहतरीन कंप्यूटर कंपनी, एंड ही इज लीडिंग अ टीम ऑफ 3,000 पीपल, 3,000 cited people. So that is his aura. And he is representing India. वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं काफी सारी चेस कॉम्पिटिशन्स में, चेस एसोसिएशंस में, एंड ही इज टॉकिंग टू अस टू क्रिएट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां ब्लाइंड बच्चों को चेस सिखाया जा सके. सो दैट इज द पैशन. सी, UPSC ऑफिसर, IAS ऑफिसर बन के ही बदलाव लाना है, ये कोई जरूरी नहीं है. Rajesh is bringing a change. Dr. Charu Datta is bringing a change. Dr. Homyar is doing the same. Then we have many other people. Dr. Dipender sir is doing the same. So जरूरी नहीं है IAS बन के ही आप बदलाव ला सकते हैं. आप अपना पैशन फॉलो करके प्राइवेट सेक्टर में you can talk about your challenges, you can talk about your areas of improvement that you have done, and you can inspire many and you can grow. So इसी चीज को ध्यान में रखते हुए we identified कि which are the various skills हम एक बच्चे को हेल्प कर सकते हैं गेन करने में, so that he becomes employable in the private sector. Because जब हम इस सेक्टर में आए तो I met all kind of NGOs. हम उन NGO से भी मिले जिन्होंने कहा कि हमारे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, आप उन्हें एक्सेसिबल रिसोर्सेज दीजिए, they can achieve anything. जैसे कि NAB के साथ काम किया या सक्षम के साथ काम किया. काफी सारे स्कूल्स बॉम्बे में हैं जिनके बारे में पता लगा है, who are inspiring them. काफी ऐसे स्कूल्स भी मिले जिन्होंने बोल दिया कि हाँ, 10th के बाद कुछ नहीं हो सकता, कोई छोटी सी स्किल पिक करिए, कॉलिंग की, कस्टमर सर्विस की, एक्सेसिबिलिटी की, और छोटी सी जॉब करिए. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई पर्सनली डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड, टेक्नोलॉजी ने हेल्प करी है हर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे की कि जो भी वो सीखना चाहे, जो भी वो बनना चाहे, he can definitely do it. बस उसे मेहनत करनी है एंड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है कि यस, जो मेरी रिसोर्सेज होंगे उनको मैं कैसे एडजस्ट करके आई मेक माई वे थ्रू, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊं. तो हमने एक मेंटर मेंटी प्रोग्राम शुरू किया जहां पर हमने कुछ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को बुलाया जिनका मोर देन 5 years एक्सपीरियंस है, और हमारे कुछ 25 विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को बुलाया कि आप इनसे बात कर सकते हैं एंड दे विल गाइड यू ऑन सर्टेन सोशल स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड. तो क्या है वो स्किल्स, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी. एंड दीज आर दी स्किल्स विच आर इजी टू पिक अप, दे कैन बी लर्न. आप उन स्किल्स को सीख सकते हैं एंड यू बिकम एज एम्प्लॉयबल एज एनी साइटेड पर्सन. एंड इनफैक्ट ये सारी स्किल्स जो हमने पिक करी थी, ये हमने किसी और साइटेड बच्चों के मेंटरिंग प्रोग्राम से ही पिक करिए, तो ऐसा कुछ भी अलग नहीं है. These are same skill which is required for even a sighted child to get a private sector job. तो इसको मैं बताना चाहूंगी. पहली स्किल है डिजिटल लिटरेसी. अब अगर कोई साइटेड बच्चा आज प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहता है तो सबसे पहले उनसे पूछेंगे क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है. तो सिमिलर टू अ साइटेड चाइल्ड, जैसे उसे कंप्यूटर सीखना जरूरी है, एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के लिए जरूरी है डिजिटल लिटरेसी. He should know how to read using his screen readers. उसकी नेटिव लैंग्वेज भी आनी चाहिए, हो सकता है हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन विच एरिया ही इज. एटलीस्ट उसको रीडिंग एंड टाइपिंग एट अ फ्लुएंट स्पीड. इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि हमने काफी बच्चों से पूछा आपकी टाइपिंग कैसी है, सबने कहा हमें टाइपिंग आती है. हमने कहा ठीक है, हमें लेटर लिख के भेजिए. दे कांट राइट. जब हम उनसे पूछते हैं आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, दे आर स्टडिंग इन द A-League कॉलेजेस, सेंट स्टीफन, सेंट जोसेफ, क्राइस्ट कॉलेज, या फिर सेंट जेवियर्स, या फिर दिल्ली के हिंदू कॉलेज. मतलब आप उस हर कॉलेज का नाम लीजिए जहाँ पे मतलब टॉप कॉलेज है जहाँ बच्चा नहीं पढ़ रहा है. बट जब हम पूछते हैं आर यू राइटिंग योर असाइनमेंट्स ऑन योर ओन, नहीं, हम स्क्राइब की हेल्प लेते. क्या आप अपने एग्जाम्स खुद लिख रहे हो, नहीं, हम स्क्राइब की हेल्प लेते. जितनी भी मैंने आपसे सक्सेस स्टोरी शेयर करी है, भाव्या की, राहुल की, मनजोत की, या आज मैं बोलती हूँ राजेश, ये सब इंडिपेंडेंट हैं. दे डू ऑल देयर वर्क ऑन देयर ओन.
They do not depend on Scribe. आज Scribe है, आज मिल जाएगा. What if everything changes in next 5 years? Please make yourself independent, and digital literacy can very easily do it. आपको खुद ही अपनी स्पीड बिल्ड करनी पड़ेगी, एंड सिर्फ उसको जानना नहीं, यू विल हैव टू मास्टर इट. आपको उसमें प्रोफिशिएंट बनना पड़ेगा, आपको उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा. इनफैक्ट मेरे जो फर्स्ट एम्प्लॉय हमने रखे थे, सतवीर, ही इज ऑल्सो विजुअली इम्पेयर्ड, एंड बिलीव मी, हमने लगा था कि हम सिर्फ एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं, बट उनकी ईगरनेस देख के, यू नो, ही डज एवरीथिंग. वो हर काम करते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग्स कोऑर्डिनेट करते हैं, स्टूडेंट्स से फॉलो अप करते हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हम काम करते हैं फॉलो अप करते हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल लिटरेसी स्किल, ही इज वेरी इंडिपेंडेंट इन हिज वर्क. ऑब्वियसली कई बार ऐसे आते हैं कि भाई कुछ काम नहीं कर पाते बिकॉज कोई चीज कंप्लीटली एक्सेसिबल नहीं है, बट दैट्स ऑल्सो उतनी मान्य है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके लिए मेरे पास भी कोई वो स्किल नहीं है, मैं नहीं कर पाती. दैट्स अंडरस्टैंडेबल. सो एवरी person, you know, will have some constraints. So idea is to accept them and move ahead. Try the next thing that we can do better. Second, digital literacy के बाद जो हम दूसरी skill बताने जा रहे हैं, which is equally important for a sighted or a differently abled child, is reading. Reading comprehensions, reading newspapers, reading magazines. इसमें क्या होता है कि it opens our mind. Reading से हमारी, जब हम नई न्यूज के बारे में पढ़ते हैं या जब हम हमारी बुक्स पढ़ते हैं जो विच आर बियॉन्ड करिकुलम, सी बुक शेयर पे आई वाज अमेज्ड कि अराउंड 8.5 लाख बुक्स हैं. हाउ मेनी ऑफ अस हैव ट्राई टू रीड थिंग्स बियॉन्ड आवर करिकुलम? बहुत बार, मतलब इट अमेजेस माय माइंड कि इतनी रिसोर्सेज हैं, तो इट ओपन्स योर थॉट प्रोसेस. इनफैक्ट काफी लोगों ने मुझे बोला कि डिफरेंट विजुअली इम्पेयर्ड की स्पेलिंग्स वीक हैं बिकॉज उनका स्क्रीन रीडर ये सपोर्ट नहीं करता. आई डिसएग्रीड बिकॉज इफ यू रियली, मैं मानती नहीं हूँ इस बात को, क्योंकि अगर आप वास्तव में अपनी स्पेलिंग्स पे काम करेंगे, इनफैक्ट जॉर्ज सर का एग्जाम्पल देना चाहूंगी. वो सीईओ हैं, ही इज द सीईओ ऑफ स्कोर फाउंडेशन. ही इज अ विजुअली इम्पेयर्ड हिमसेल्फ, एंड बिलीव मी, उनकी स्पेलिंग्स 99% इंडिया से अच्छी हैं. उनकी कम्युनिकेशन 99% इंडिया से अच्छी है. Nobody can beat him in spellings, comprehension, communications. He is representing visually impaired on various forums. So if you want to learn it, you have the technical resources to learn it. Screen reader support करता है आज spellings को. So please don't consider it कि it cannot be done. You try it, it will definitely happen. Third चीज जो मैं बात करना चाहूंगी are social skills. Social skills are extremely important. See, मैं भी business करती हूँ. I am running a NGO. मैंने सबसे पहले जाके बात करी 50 other NGOs जो visually impaired का काम कर रहे थे. हमें पिछली कंपनी जो मैं फॉर प्रॉफिट कंपनी चलाती थी, उसमें हमारा 30% पैसा सिर्फ स्टूडेंट लाने में खर्च होता था. यहाँ पे मेरा एक भी पैसा स्टूडेंट एनरोल करने में नहीं लगता. इसका मतलब जैसे कि इंडिक एआई फाउंडेशन पे 500 बच्चे हैं. अगर यही 500 बच्चे मुझे एड्यूप्रिस्टीन में लाने होते तो मुझे 5 लाख बच्चों से बात करनी पड़ती, तब जाके मेरे पास 500 एनरोलमेंट्स आते. लेकिन इंडिक एआई के लिए नहीं खर्च किया. मैंने सिर्फ 50 एनजीओ से बात की, जो कि जनरली डिस्कशन हुआ, एंड दे सेंड अस दीस चिल्ड्रन, एंड दे कैन इवन गिव अस 5,000, दे कैन इवन गिव अस 50,000. इट्स दैट हमारे पास अभी लिमिटेड कोर्सेज हैं. वी हैव जस्ट स्टार्टेड, बट सोशल स्किल्स आर सो इम्पॉर्टेंट. जैसे इसमें मैं अपने एक स्टूडेंट की बात करना चाहूंगी, सौरभ. ही इज स्टडिंग इन बीटेक. वो IIIT दिल्ली से बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं. तो ही सेड कि देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द करिकुलम. मुझे जो बुक्स दी जाती हैं वो कंप्लीटली एक्सेसिबल नहीं है. अब उनमें से काफी बुक्स तो उन्हें बुक शेयर पे मिल जाती हैं जो एक्सेसिबल फॉर्मेट में होती हैं, बट कई कोडिंग होती हैं आजकल जो एक्सेसिबल नहीं है. व्हाट डू वी डू? So I reached out to the management. मैंने कहा कि can you please help him? So they said, Sarita, we have limited bandwidth. They were true, क्योंकि अगर आज मैं हिंदी मीडियम से होती और मैं कहती सर ये बुक मुझे हिंदी में चाहिए, तो वो कहते कि नहीं, we cannot do it. ये बुक आपको सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगी, you know, या मैं कोई और नेटिव लैंग्वेज में मांगती क्योंकि मेरी प्रोफिशिएंसी वो है, वो मुझे भी मना कर देते. तो सिमिलरली I told Saurabh, you have 300 other students in your class.
why don't you reach out to them to help? Because jab unhe, they are the IT professionals of today, they are going to be working with different IT companies. If you make them aware that these are the challenges that you face, imagine what will happen tomorrow. They will all be aware when they are creating next product. जैसे कि राजेश ने बताया कोई प्रोडक्ट एक्सेसिबल नहीं था, उस प्रोडक्ट टीम का अगर कोई भी इंजीनियर कभी भी किसी विजुअली इंपेयर्ड बच्चे से मिला होता तो शायद उसके दिमाग में ये चीज होती, यार लेट मी वर्क ऑन इट. So you are not only taking help from them कि जो ये accessible material नहीं है वो मुझे सिखा दीजिए, but you are also creating awareness that these are the constraints we face. Can you please ensure that these are sorted out in a long term? So this is what social networking. Please अपने college में don't just create a small group of people. जैसे girls का भी मैंने देखा है, they will just have a group of 4 girls, sighted girls, they'll make a group of their own. It doesn't work. See, when we are aspiring for professional jobs, we have to have a professional network, be it sighted or be it differently able. So please reach out to all your teachers, all your friends, know as many people. और जो मैंने बोला reading current affairs, see, these are the things which will give you conversation, leads. कि बात कैसे शुरू करूं? चलो आज current event पे ही बात करते हैं. Let's start discussing COVID. Let's start discussing what is happening with China. अगर हमें ये सारी चीजें पता होंगी तो इट विल आल्सो हेल्प अस टू ओपन. हमने जो लास्ट, सो अगेन मैं समराइज कर देती हूँ कि जो हम मेंटरिंग प्रोग्राम में करते हैं और जो स्किल्स हमें लगती हैं आप लोगों को भी बिल्ड करनी चाहिए, पर्सन को बिल्ड करनी चाहिए. डिजिटल लिटरेसी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सोशल स्किल्स, एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इज एक्स्ट्रा करिकुलर. सी, इंडिया सबको लगता है एग्जाम में मार्क्स आ गए और आपका करियर बन गया. दैट इज नॉट द केस. मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, इसी चीज का इंस्टीट्यूट चलाते थे. बिलीव मी, मार्क्स आर इम्पोर्टेंट बट देयर आर मेनी मोर. उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. क्या आपकी कोई हॉबी है? जैसे कि हमारे काफी बच्चे चेस खेलते हैं. आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. इनफैक्ट हमारे 2 बच्चे जैसे जो सौंदर्य और प्राचुर्य जो चेस खेलते हैं वो दूसरों को भी सिखाते हैं. अभी हमने उनके साथ एक ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप करी वेयर दे आर हेल्पिंग अदर्स टू टीच चेस. सो म्यूजिक, as Rajesh mentioned, I've seen a lot of children learning music, reading books. So anything, have extracurricular, participate in extracurricular activities, have hobbies, ताकि आपका एक इंटरेस्ट का भी आप काम करते रहें. So it keeps you happy. It keeps you again part of a community, कि you are connected to people in some other way. So that's all. And एक सबसे जरूरी बात जो कि मैंने मेरे सब बच्चों में देखा है, give back. I'm sure with whatever skills we have, we can always help others. We don't always have to help someone by giving him money. Tomorrow you can just mentor a child. आप 10th क्लास में हो, आप किसी 8th क्लास के विजुअली इंपेयर्ड बच्चे की थोड़ी सी भी हेल्प कर दोगे, it will be give back. That is so important. It will again help you. It will keep you stress free. हम लोग एक Maslow's law बोलते थे इसको, self actualization need. ये होती है कि जब आप अपने आप को इस काबिल बना लेते हो कि आप दूसरों की मदद करते हो, तो that is called give back. प्लीज डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी. इस अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा नहीं. कुछ भी आपके पास नॉलेज है या कभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो डू रीच आउट एंड हेल्प एवरीवन एल्स. You are as capable and as qualified to help someone in need. So thank you, Dr. Homyar. मेरे पास इतना ही है, and we can take the question answers from the children now. Thank you so much, Sarita. Thank you for this super inspiring speech. And I agree to all your points कि जो skilling होनी चाहिए लोगों में, उस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं. ध्यान देते हैं मैं अच्छा स्क्राइब कहाँ से लाऊं, ध्यान देते हैं तो मैं कौन सी रिजर्व जगह के लिए अप्लाई करूं, ध्यान देते कौन सा ऑनलाइन फॉर्म खुला है जहां मैं सरकारी नौकरी के लिए भागूं, पर खुद की स्किल डेवलपमेंट के पीछे कभी ध्यान नहीं देते. So I agree with you completely.